Yesterday, we started our very first chapter of political science, that is power sharing. Yesterday, we discussed some basic concepts of power sharing. We also discussed why power is shared, very essential in a democracy. And we also come to know in a democracy, in the last year, we can say, and in the last year class, you also read about the thoroughly about the democracy. In democracy, there is a system that all the powers are not rested in a few hands, or we can say in a single organ. That's why these powers are shared in different organs and levels. And why it is necessary that the powers should be shared? Because we everybody know that democratic country is that country where the people's empowered, people's in constitution, the constitution has empowered people through casting their vote, they elect the government, and the government is also empowered to use on the behalf of the people, they use the power, and the constitution directly gives the power to the government to run the nation. But we have to understand that these powers are not absolute. These powers, people's powers, are also not absolute. These are also limited and checked by some process. So now I am going to directly. Yesterday, the some I was just explaining about the organs of the government. That was a legislature, executive, and judiciary. In the last, we already discussed about the legislature. Executive legislature is the organ which form the laws, executive who implement the laws, and judiciary who review that the legislature and executive who form and implement the laws, these are in according to the constitution or according to the rules and principles in a, or we can say in a through a legal process. If the judiciary found that the laws are illegal, the judiciary has the right to declare these laws null and void. तो कहने का the another word we can say quashed. It is called a quashed. तो मतलब वो उन laws को quashed कर सकती है, अब उसकी कोई भी use नहीं होता है. So this is the, we can say, the organs, how these through these organs are, three organs are there. And this is called, also called the check and balance of power sharing, where legislature and executive, they control to each other, and judiciary control both the organs. Now I am just going to directly to the topic of this chapter. In this chapter, we will understand how the powers are shared between different, we can say, organs and levels, and through opposite two stories. The first story is about Belgium, and second is about Sri Lanka. Okay, directly I'm going to start because what is the basic or background of this chapter I gave you yesterday. Belgium. Belgium, it is a small country in, we can say, in Europe, and Brussels is its capital. Belgium is very small than our, we can say it's a very small that rather than the comparison of in Haryana. Haryana से भी छोटा state है, और population it's 1 crore population. Ethnic composition is complex there. First of all, you have to understand ethnic. What is mean by ethnic? Ethnic का मतलब क्या होता है? Ethnic, it means the people, they shared culture, they live together, they shared culture. It's not necessary they should be a common nationality and common citizens, but they shared culture. Because why? They have the some similarities in them, है ना? उनमें कुछ similarities होती है. जैसे हमने कहा ट्राइबल पीपल है, समझ लो, समझ लीजिए इस बात को, एग्जाम्पल से समझा दूं. ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल पीपल ऑफ अफ्रीका, both are tribals. Their nationality is different, and we can say their but their appearance is same. Appearance same, nationality is different. They could also spoke different languages, but they shared the culture, same culture. आपको पता है ट्राइबल्स लोगों का कल्चर क्या होता है? सेम होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एथनिक कॉम्पोजिशन. तो जो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन था, इट वाज आल्सो कॉम्प्लेक्स्ड. And rather than what was the language, the differences of language based regions were there. There was a 59 people, 59% people who spoke Dutch, they lived in Flemish region, and 40% people who spoke French, they lived in Wallonia region. And one more important thing, 1% is Belgians, they lived in Belgians area, they spoke German.
So in this way, the language policy, they we can say the different spoke language people, they lived in different areas. So we see that in Belgium 59% Dutch people, 40% French, and 1% German. But it is contrast in Brussels. ब्रूसेल्स में क्या था, है ना? ब्रूसेल्स में क्या था? दैट इज इट इज कंट्रास्ट इन ब्रूसेल्स. व्हाट इज दैट? इसमें 80% जो थे, अब यहाँ पर क्या है, 80% यहाँ पर डच और यहाँ पर फ्रेंच. तो माइनॉरिटी यहाँ पर फ्रेंच है, यहाँ पर 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और 20% क्या बोलते हैं? डच. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट हो गई. अब बात ये आई कि हमने ये चीज हमें मालूम है कि जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं दे ट्राई टू रूल ओवर माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल. एंड you should first of all you should understand what do you mean by majority and minority. Majority in numbers also, majority in numeric also, majority in we can say in language speaking people, culture followed people, religion based people, we can say majority and minority. Here the majority we are talking about and minority people, they are, it is based on language. So माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली, बट अब हम अगर इस कंट्री की बात करें तो ये कंडीशन चल रही है. अब जो फ्रेंच पीपल है ये कंट्री के अंदर क्या है, माइनॉरिटी है, लेकिन ये क्या है, रिच है और एजुकेटेड है. ठीक है. और जो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है उन वो जो पीपल हैं दे एजुकेटेड वेरी लेटर. अब प्रॉब्लम कहाँ है? what can could be the we can say the problem is there that कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए. what form of government should be there according to the people who are according to the percent of the people who spoke different language. आपने सुना होगा कि मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल दे ट्राई टू सेपरेट माइनॉरिटी. सेम यहाँ पर भी ये था कि उन्हें लगा कि बेल्जियम का क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा. जो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको और ज्यादा सप्रेस किया जाएगा, उनके राइट्स एनक्रोच हो जाएंगे, और जो मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या करेंगे, रूल करेंगे वहां पर. तो ऐसी कंडीशन में ये एक हमारे सामने कंडीशन आई. अब बताइए कि यहाँ पर पावर शेयरिंग कैसे होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशंस क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. अब सेकंड हम यहीं पर इस टॉपिक को मैं स्टॉप कर रही हूँ, बेल्जियम वाला. फिर मैं आगे बताऊंगी कि इन्होंने क्या किया. यहाँ जो है सेकंड उसमें ये होगा कि बेल्जियम में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया. वी विल लेटर डिस्कस. नाउ आई मूव टू श्रीलंका. श्रीलंका कहाँ है आपको मालूम ही है ना. हमारे जो यूं कहा जाए कि साउथ की एक छोटी सी नेबरिंग कंट्री है, और यूं कहा जाए कि इसकी बहुत छोटी कंट्री है और डिफरेंट स्पीकिंग पीपल यहाँ पर रहते हैं. यहाँ पर भी लैंग्वेज की सेम, क्योंकि जब हम स्टोरी बता रहे हैं तो सेम एस्पेक्ट को लेके बताएंगे. यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ जो लैंग्वेज मैक्सिमम लोग बोलते हैं वो है सिन्हाला. कौन सी लैंग्वेज है? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल कितने हैं? 74%. तमिल स्पीकिंग पीपल कितने हैं? 18%. ठीक है. अब बात ये आती है कि तमिल भी जो स्पीकिंग पीपल है उनको भी टू उसमें कैटेगराइज किया है. तमिल नेटिव्स, यानी जो तमिल नेटिव्स जो ऑलरेडी वहां रह रहे थे, दे वर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स, देयर परसेंट वाज 13%. एंड इंडियन तमिल्स कौन थे? जो आपको मालूम है कि उस समय क्या होता था कि जो दूसरी कंट्रीज में हमारे फोर फादर्स एज अ लेबर, एज अ टू फॉर द एम्प्लॉयमेंट, दे मूव टू कंट्री. तो इस तरह से जो इंडिया से जो हमारे फोर फादर्स वहां जाके रहे और बाद में वहां के नेटिव हो गए, लेकिन वो क्या कहलाते थे? देवर कॉल्ड इंडियन तमिल्स एंड देयर परसेंट वाज 5. थर्ड एक कैटेगरी के पीपल थे जो कि क्रिश्चियंस थे, जो कि 7% थे उनकी, वो बोथ तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे. अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको. तो मेजोरिटी किसकी चल रही है? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल की. अब बात ये आती है कि वहाँ रिलीजन क्या था. रिलीजन था बुद्धिस्ट,
हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे और क्रिश्चियंस थे। बुद्धिस्ट जो थे, ये जो सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे, दे फॉस्टर द बुद्धिज्म रिलीजन, ठीक है। और तमिल जो नेटिव्स थे, दे वर फॉलोज हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ वर देयर, क्रिश्चियन भी बोथ तमिल एंड सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि दोनों की कंट्री की स्टोरी में ट्विस्ट है। वहां पर ही लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मतलब लैंग्वेज मेजोरिटी पीपल है, और यहाँ पर भी लैंग्वेज की मेजोरिटी पीपल है। अब श्रीलंका में इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया, हम ये देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, बट इन स्पाइट ऑफ इट बेल्जियम रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अनदर वे, एंड श्रीलंका, देन श्रीलंका। तो दोनों ने उसको कैसे रिजॉल्व किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका ने क्या किया बच्चों? श्रीलंका ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की। इट वाज कॉल्ड द मेडिटोरेनियन पॉलिसी। देखो बच्चों, ये जो पॉलिसी है मेडिटोरेनियनिज्म इन श्रीलंका, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका लिटरल मीनिंग आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, लेकिन मैं आपको वैसे वर्बल बताती हूँ। मेडिटोरेनियनिज्म का मतलब होता है मेजोरिटी, जिस ग्रुप की मेजोरिटी है वो माइनर ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करते हैं, उन पे रूल करते हैं, और वो ऐसा मानते हैं दिस इज आवर राइट कि मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पीपल देन दे कैन रूल ओवर द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल। तो अब श्रीलंका में ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मेडिटोरेनियनिज्म मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, कि कौन से उन्होंने मेजर्स लिए थे अपनी मेजोरिटी, यूं कहा जाए अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि श्रीलंका डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन स्पाइट ऑफ वो मेडिटोरियन मेजर क्या थे, सिन्हाला को क्या बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिनाइड अदर लैंग्वेजेस। अदर लैंग्वेजेस में कौन सी हो गई, श्रीलंकन तमिल थे, है ना वो। उसके बाद थर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रिफरेंशियल पॉलिसी बनाई। अब उसमें क्या था, दे अडॉप्टेड ए प्रेफरेंशियल पॉलिसी। इसमें क्या था कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उन्हें प्रायोरिटी दी गई इन ऑल स्फीयर्स, इन ऑल फील्ड्स। जैसे हमने कहा, जॉब्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगह सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे उनको प्रायोरिटी दी गई। एंड श्रीलंकन तमिल्स, they were denied, they were just ignored by this government। तो प्रायोरिटी, यू कहा जाए कि मेडिटरेनिज्म जो श्रीलंका ने अडॉप्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, अगर हम ओवरऑल इसका रिजल्ट देखें तो क्या होता है कि मेजोरिटी बेस्ड लैंग्वेज मेजोरिटी, वी विल से लैंग्वेज मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट was formed and other people were ignored। तो इनको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा। अब क्या हुआ श्रीलंका में, अब श्रीलंकन तमिल्स, दे टाइम टू टाइम दे जस्ट वांटेड एंड दे start to protest against this system and raise their voice against the government। They wanted that these Sri Lankan Tamils also be recognized, their language should be also that should be, we can say, uh, given the place in official languages also. You everybody know that in our constitution
there are 22 languages are there. So according to that, what do you mean by this? अगर हम ये बात कहें कि 22 languages को constitution में जगह मिली है तो उसका मतलब क्या है? If a person of, we can say, belong to in all these 22 languages which is mentioned in our constitution, he can take the any competitive exam in his or her language. तो वो 22 भाषाओं में से कोई भी लैंग्वेज चुन के अपना एग्जाम दे सकता है, इसका मतलब ये होता है। और श्रीलंका में क्या चल रहा था कि सिर्फ सिनाला स्पीकिंग पीपल को हर चीज की प्रेफरेंस दी जा रही थी। तो ये जो श्रीलंकन तमिल से दे जस्ट स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, एंड टाइम टू टाइम दे वर डिमांडिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड लैंग्वेज आल्सो। वो सब बात इस चीज को कर रहे थे, एंड दे आल्सो एक्सेप्टेड कि कोई भी पार्टी जो भी आएगी पॉलिटिकल पार्टी, वो उनको जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगी। दैट्स व्हाई there was a, we could say that there was a civil war. सिविल वॉर का मतलब क्या हुआ? सिविल वॉर का मतलब होता है टू डिफरेंट इन अ नेशन, इन अ कंट्री, टू अपोजिट ग्रुप्स दे क्लैश टुगेदर, दैट दिस इज कॉल्ड अ सिविल वॉर। अब वो सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? कैन दे जस्ट डिमांडिंग द दीज श्रीलंकन तमिल, दे वर डिमांडिंग द सेपरेट तमिल एलम स्टेट, कि उनकी भाषा पर जो है वो स्टेट बनाया जाए। आपको मालूम है कि इंडिया में भी जब इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है लैंग्वेज के ऊपर स्टेट बनाने की बात हुई, है ना? तो दे वर आल्सो डिमांडिंग, बिकॉज देयर वाज आल्सो इशू कि इंडिया की जो मदर, जो अपनी जो टंग है हिंदी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन जो साउथ जो पीपल थे, दे वर अपोज्ड ऑफ इट, दे प्रेफर्ड इंग्लिश रादर देन हिंदी। That's why our Indian constitution, they just adopted the two languages as a official. This is a Hindi and English. So that's why this problem was also faced by Indian constitution makers, like that in Sri Lanka. But Sri Lanka adopted a different, we can say, different policy, different idea, and due to it resulted in a civil war. Number of people they were killed in civil war, and later it resulted a devastation for property and life both. But on the other hand, this we now we come to know about the how the majoritarian policy adopted in India, and sorry, in Sri Lanka, and what was the result. So now I move to the once again the first story of Belgium. तो बेल्जियम की हमें एक जो स्टोरी है वो समझ में आई। अब बेल्जियम ने इसको कैसे रिजॉल्व किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो। अच्छा बच्चों, आपके देखो सिविल वॉर का वो दे नहीं रखा, फिर भी मैंने नोट डाउन किया था तो मैंने कहा मैं बता दूंगा आपको। ये है 23 जुलाई 1983 से आपके जो है 18 मई 2009 तक रहा। ये आपका सिविल वॉर पीरियड है, ठीक है? इफ यू मेंशन इन योर आंसर इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्जियम। तो इसी में मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार एग्जाम में आता है, बेल्जियम मॉडल क्या था? व्हाट वाज बेल्जियम मॉडल? अब आपको मैं देखो बहुत ज्यादा बात को घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि जो बुकिश जो लैंग्वेज होती है वो एक अपनी लैंग्वेज उस हिसाब से दी हुई होती है। पहले तो हमें चीजों को समझना है कि बेल्जियम मॉडल क्या था, इसमें ऐसा क्या। सबसे बड़ी बात है कि दिस मॉडल वाज अ इनोवेटिव मॉडल, बिल्कुल नया था, और यूं कहा जाए कि एकोमोडेशन देने वाला था। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन? चलो इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। इन इंडिया देयर इज अ डाइवर्सिटी इन ऑल स्फीयर्स, and we say that there is diversity in language, numbers are there, religion, caste, and all that. But in our constitution, there is a accommodation of this diversity. Accommodation is given the space. उन्हें जगह दी गई। These diverse groups are also included. They also assured minimum assurance is given by our constitution. Recognition is given to these diverse group of people. So that's why we see that the fundamental rights are given to all people, whether they are different to each other, they spoke different language, followed different religion, their caste is different. In spite of all this diversity, they
give the accommodation in our constitution. So like that in Belgium, we will discuss about today the Belgium model. What is the Belgium model? Belgium model was a totally innovative idea in this to resolve this problem, and they just did not want to separate the nation on the basis of language. They adopted this Belgium model. First of all, you have to understand that there was a country that was a Belgium. Then capital, it was a Brussels. So this Belgium model, they adopted, I should say that innovative idea. They formed the government on 4 levels. आपकी बुक में 3 दिया हुआ है ना, 3 ऐसे दे तो आपकी बुक में 4 रखे हैं, लेकिन बोलने में वो थर्ड बोलते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ चीजें। 4 गवर्नमेंट्स बनी थी, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। उस मॉडल को हम समझेंगे। देखो, पहले तो मैं आपको बिल्कुल सुपरफिशियली बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्री की। तो कंट्री हो गई बेल्जियम। इसके अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच हो गए, डच स्पीकिंग पीपल हो गए, और फ्रेंच हो गए, डच हो गए, और 1% थे जो बेल्जियन थे। इन सबकी कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं को इंक्लूड किया गया। इंक्लूड करके क्या किया गया? कंट्री में एक गवर्नमेंट बनाई। समझ रहे बात? एक कंट्री में गवर्नमेंट बन गई जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि कंट्री में एक गवर्नमेंट बनी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन था किनका? डिफरेंट कम्युनिटीज का। उसका रीजन क्या था कि अगर कोई चेंज करना चाहे, समझ लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे, तो कुछ ही पीपल जो है मिलकर, या कुछ ही कास्ट को यूं कहा जाए कम्युनिटी, जो मेजोरिटी ग्रुप है वो उसको चेंज ना करें, इसलिए इक्वल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसके अंदर भी क्या रखा गया? इसमें भी जिसको हम कह सकते हैं कि इक्वल नंबर्स थे फॉर बोथ द कम्युनिटीज। देखो, दोनों कम्युनिटीज थी, डच और फ्रेंच। तो स्टेट के अंदर भी ध्यान रखा गया कि इक्वल नंबर जो है ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है। जो स्टेट है, इट इज नॉट आंसरेबल और सपोर्टिव टू द सेंटर, इट इज ऑटोनॉमस बॉडी। समझ रहे बात को? कि स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है कि इसकी अपनी पावर है, यानी इट इज नॉट सपोर्टिव, और वी कुड से दैट हेल्पिंग हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपने सेपरेट लेवल पे वर्क करती है। इसके फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, इसके अपने लॉ बनाने के सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ अलग है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो चीज है वो क्या है? कैपिटल। थर्ड गवर्नमेंट कहाँ बनी? कैपिटल में, है ना। अब आप मुझे बताइए कैपिटल में कैसे बनी? कि जब कंट्री के अंदर ध्यान रखा गया, व्हेन इन कंट्री where we see the Dutch speaking people 59 and the French speaking people 40. In capital there was a 80% French and 20% Dutch. So when there was country, they support, or they supported the different communities in equal representation was there. In capital they also accepted the same process which was adopted in Belgium. तो उस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया कि ये इस चीज का ध्यान में रखते हुए कैपिटल के अंदर बनाया। तो इसमें भी क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
at the state and the central level. A separate government has been set up at Brussels. ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे बच्चों कम्युनिटी, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट कम्युनिटीज पीपल वर देयर, डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, है ना, और डिफरेंट रिलीजन पीपल वर देयर। अब इन्होंने फोर्थ पे कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट बनाने का रीजन क्या था? तो ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इसलिए था, और यूं कहा जाए एक आइडल मॉडल था दैट अनदर कंट्रीज if they face these types of problem they could also adopted it. So community means the different people who could be 1%। हमने देखा था ना कि जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। अब आप बताइए कि अगर 1% है तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा गवर्नमेंट में? लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर यही चीज को ध्यान रखा गया कि वेदर देयर नंबर ओनली 1% इज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट, वेदर दे आर लिविंग इन एनी एरिया ऑफ द कंट्री, कहीं भी रह रहे हैं, उनको वो जो है कम्युनिटी बेस्ड जो गवर्नमेंट होगी उसमें वो उनका जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। तो चार तरह की गवर्नमेंट क्या रही कम्युनिटी बेस्ड में? देखिए हम देख रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो नेक्स्ट है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इट इज इलेक्टेड बाय पीपल, ये लोगों ने खुद ने चुनी है। ठीक है, दिस गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। ठीक है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग गवर्नमेंट हो गई, है ना, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। यानी आप देख रहे हो कि जर्मन जो 1% था उनको भी जो है प्लेस मिला यहाँ पर, और उनकी भी सरकार बनी। अगर उनको अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करना है तो वो कर सकती हैं, स्पीकिंग फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर, ये भी जरूरी नहीं कि वो कहाँ रह रहे हैं, नो मैटर वेयर दे लिव। This government has the power regarding cultural, educational and language. So this was a Belgium model, and this is in I told you about, I explained you here basic concept of what was the Belgium model. अब आपको इसका जो है बहुत अच्छे से आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। मैंने आपको इसका बेसिक आइडिया दे दिया, तो आपको समझ में आ रहा है जो पावर शेयरिंग हमने समझा वो क्या था? अब मुझे बताइए, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दें। दोनों चीजें मैंने समझा दी। यहाँ पर जो पार्ट्स का डिवीजन हुआ वो वर्टिकल हुआ या हॉरिजॉन्टल हुआ? सर एक बच्चे को अनम्यूट करना। आयुष्मान, यस मैम। हेलो। अब आप यस मैम। बताएं, जो बेल्जियम मॉडल जो हमने अभी पढ़ा उसमें यस पार्ट्स मैम। का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? इट इज इन वर्टिकल फॉर्म और हॉरिजॉन्टल? मैम इट इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। सॉरी बेटा, इट इज इनकरेक्ट। मैम आई
Apeksha, you tell me please. Mm, Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, as My you have question is told this. that the horizontal one is incorrect, then obviously, That's ma'am, it why. will be vertical No. division. Okay. No, no. But first of all, you have to give the why you have given this answer. You have to prove it first. बताओ क्यों दिया आपने कैसे आपने बिल्कुल यू आर राइट कि आपने मैंने ऐसा बोल दिया इट इज Ma'am, इनकरेक्ट दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस इज यस व्हाई इट इज अ वर्टिकल डिवीजन ऑफ ma'am, ओके क्योंकि मैम ऑल कंट्री लेवल सर वो बच्ची बता मैम रही है क्योंकि अपेक्षा कंट्री हाँ लेवल पे उन्होंने अलग अलग डिवीजन दिया था, उन्हें अलग अलग पावर्स, अलग अलग मतलब वो अलग अलग डिविजन्स थे, उनके उनके पावर्स भी डिफरेंट थे। और स्टेट हम्म लेवल पे भी उनके पावर डिफरेंट थे, कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटीज को पावर मिला हुआ था, सबको अलग अलग हम्म तरीके से पावर था, इसलिए वो हम्म वर्टिकल डिवीजन। तो हम वर्टिकल आई डिवीजन को थिंक अगर सो। मैं बेसिक यू थिंक सो मैं एक बात पूछ रही हूँ कि कल मैंने जो चीज बताई थी इट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली दैट थिंग कि व्हाट वाज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर yesterday I explained on the board there just you give your answer relevant to this you have to prove that this is the vertical division of power how you will prove it Ma'am, in contrast with India, ma'am, that they are central government, state government, local government. They are also having many governments on different levels. So okay they are vertical division of power. yes totally agree with your answer totally agree satisfactory very good. So according to that, we see that yesterday I discussed about that we can say vertical division of power. There are levels. Indian perspective से हमने समझा था that the three levels are there. That is the center, state, and local. And according to the Belgian model, the powers are also divided vertically. That is a country government. Second is state. Third is capital. And the fourth is community. So we can say this is a vertical division of power. So Belgium model and Sri Lanka. These two stories we now come to know about the religion, about the language policy. How, but different country. Both are democratic nations. Both are democratic. But in spite of that, they deal with the problems of language. Different communities were there differently. ये क्वेश्चन भी आता है कि उन्होंने डिफरेंटली उसको कैसे किया तो आपको बताना है दोनों का कि बेल्जियम मॉडल को लिया उन्होंने और श्रीलंका में मेडिटेरेनियन पॉलिसी को लिया. So today we discussed about all the things here. Tomorrow I'll start up with the new topic and till that have a nice day.